So, welcome and good afternoon to the all participants. So, today Mr. Nikhil Jain is present over here. He is an entrepreneur, an active angel investor, and a venture capitalist also. He is a co-founder of Beast Network, which provides funding to the startups and help them to become profitable and scalable businesses. He was also the part of the 90 members delegation that went to Israel and was welcomed by the Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, and Israel Aerospace Industries. He has invested in a more than 30 startups within India and abroad. He is on a mission to do the startups ecosystem by mentoring, advising, and providing funding to the young entrepreneurs of New Bharat. So today he will be going to present a session on. He will be going to present a topic on on early bird startups. So it's over to you, sir, Mr. Nikhil Jain, sir. Yeah, thank you so much, Ayush. Thank you, sir. I hope my voice is audible right now. Yes, sir, you are audible. All right. And is the screen visible? I've started screen sharing. Hello. Yeah, Ayush, can you see the screen? Yes, sir, your screen is visible. All right, all right. Thank you so much. Thank you, City University, for inviting me. And today's topic is regarding, funding of early stage startups. So myself, Nikhil, I am currently running my own business. We're into B2B of garments. And I have been active, in angel investments as well. So I've been investing in startup ecosystem for roughly about 2.5 years, and I have done maybe more than 30 plus investments. So I am a mentor as well, and recently we have co-founded a company. So we are three co-founders by the name of Beach Network, in which we provide funding to early stage startups. So all right. So we are on a mission to de-risk the startup ecosystem, and it is very important to de-risk the ecosystem, and we do this by mentoring the startups, by providing consultancy to them, by hand holding and giving them advice to how to move up the ladder. All right. So सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टार्टअप्स की जरूरत क्यों है आज के अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो स्टार्टअप्स की जरूरत क्यों है। तो जो आप पिक्चर देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, तो ये 1900 की पिक्चर है। इट इज फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी। और अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो ये सभी हॉर्स कार्ट्स हैं। हेलो, या तो ये सभी हॉर्स कार्ट्स इस पिक्चर में हैं और बीच में सिर्फ एक ऑटोमोबाइल है। तो ये 1900 की पिक्चर है। और अगर आप ये देखें 1913 में सभी ऑटोमोबाइल हैं और यहाँ पे एक भी आपको हॉर्स कार्ट नहीं दिखेगा। तो अगर आप देखें 1913 तो सिर्फ 13 सालों में किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि हॉर्स कार्ट से हम इतनी जल्दी ऑटोमोबाइल पे मूव अप कर जाएंगे। तो 13 साल में पूरी इंडस्ट्री वो डिसरप्ट हो गई थी। तो स्टार्टअप कुछ नया नहीं है, लेकिन डिसरप्शन की पेस बहुत फास्ट हो गई है। ओके, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएस में फ्रॉम 1900 टिल 2010 जो टेक्नोलॉजी आई उसको कितना टाइम लगा पूरी मास पॉपुलेशन में अडॉप्ट करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, इन सबको ऑलमोस्ट 100% अडॉप्शन के लिए लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल लग गए थे। लेकिन आज के टाइम में जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज आई हैं, चाहे आप सोशल मीडिया लीजिए, चाहे इंटरनेट लीजिए, चाहे स्मार्टफोन लीजिए, तो जो डिसरप्शन की फेज है वो बहुत फास्ट होती है। तो जो लास्ट में आप जो लाइंस देख रहे हैं ऑरेंज और रेड मार्क की, वो है स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, टेबलेट्स।
तो आप देखेंगे सिर्फ 5-6 सालों में ही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट अडॉप्ट हो जाती है कि वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर देती है। ओके, तो ये तो बात थी, मैंने आपको यूएस के एग्जांपल्स दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। तो अगर आप इंडिया में ध्यान से देखेंगे तो इंडिया की डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अंडर 30 एज, तो जो पहले दो बार्स हैं 26% एंड 25%, सो दैट्स ऑलमोस्ट अमाउंट टू 51% प्लस। तो लगभग मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो एज 30। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। किसी भी कंट्री के पास ऐसी डेमोग्राफिक नहीं है जिनके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, दैट इज बिलो द एज ऑफ 30। तो इंडिया हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर द होल वर्ल्ड। दैट इज व्हाई एवरीवन टुडे इज लुकिंग एट अस एज अ स्टार्टअप हब ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट इज इंटरनेट एडॉप्शन रेट। इंडिया में जो इंटरनेट की एडॉप्शन हुई है वो बहुत फास्ट हो चुकी है। अगर आप यूपीआई की बात करें या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस देखें, तो रूरल एरियाज तक भी, ऑल थैंक्स टू जियो ऑल्सो, कि जो पेनिट्रेशन हो गई है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है इंटरनेट की ऑलरेडी। तो 2007 में सिर्फ 4% लोग इंटरनेट यूज करते थे, और आफ्टर कोविड ये मतलब 50% तक शूट आउट हो गया था। और अगर आज की बात करें तो ऑलमोस्ट वी आर सिटिंग एट 50% पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इंटरनेट। तो अगर आप इन सब चीजों को आप मिला के देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि डिसरप्शन पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, लेकिन जो डिसरप्शन की पेस है वो बहुत फास्ट हो गई है। पहले अगर 30, 40, 50 साल लगते थे किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, अब 5 साल, 7 साल। कई बार ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आप सबने सुना होगा टिकटॉक। तो मतलब वो तो 3 सालों में ही इतना ज्यादा ह्यूज एडॉप्शन रेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकीनेस। तो डिसरप्शन बहुत फास्ट हो गई है। और इससे होगा क्या, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है या तो उनको बहुत तेजी से बदलना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर एक मतलब एक स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा बन जाएगा कि वो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे अगर वो अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। और जितने भी फ्यूचर में बिजनेसेस होंगे वो सब टेक्नोलॉजिकल सेंट्रिक होंगे। कि आप अगर आप कोई भी बिजनेस मॉडल ले लीजिए, अगर आपको रिवैम्प करना है तो आप बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट के सोच ही नहीं सकते हैं कोई काम करने का। तो जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो टेक्नोलॉजी हर बिजनेस के कोर में होने ही वाली है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इन सब केसेस में जो स्टार्टअप्स का रोल रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक टर्म यूज होती है वोका वर्ल्ड, तो आप इसको बाद में गूगल भी करते हैं, कि जो आने वाला टाइम है वो कितना अनसर्टेन है और वॉलेटाइल है, क्योंकि चेंजेस इतने फास्ट आ रहे हैं कि हम उसको मतलब नॉट एवरी वन कैन एब्जॉर्ब ऑल दिस चेंजेस विच इज हैपनिंग सो फास्ट। ओके, सो अब हमें ये तो समझ आ गया कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है और एडॉप्शन बहुत फास्ट हो रही है, ट्रेडिशनल मॉडल्स डिसरप्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टअप्स क्या है, इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई स्टार्ट शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज स्टार्टअप बेसिकली। तो जब स्टार्टअप दिमाग में आता है तो सबसे पहले अब हमें ये समझना जरूरी है कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप में मे बी हमारे फादर या हमारे अंकल या हमारे कुछ नोन में जो ऑलरेडी कर रहे होंगे बिजनेस, उसमें और स्टार्टअप में फर्क क्या है। तो देखिए, जो ऑलरेडी बिजनेस मॉडल एग्जिस्टिंग है उसमें इक्विटी अपने ओनर्स की होती है, मतलब जो कंट्रोल होता है या फिर जो, अगर आप बोलो कि पैसा लगा होता है, वो फाउंडर्स का लगा होता है। स्टार्टअप में मोस्टली ये देखा जाता है कि एक्सटर्नल फंडिंग बहुत इजीली मिलती है, और तभी उसे मतलब स्टार्टअप कहा जाता है रादर देन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। और अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, एज पर डीपीआईआईटी जो रिकॉग्निशन है, वो स्टार्टअप उसे कहा जाता है जो कि 10 सालों से 10 सालों के अंदर अंदर कंपनी फॉर्म हुई है। अगर 10 साल पुरानी आपकी कंपनी है तो वो स्टार्टअप रजिस्टर नहीं हो सकता। और दूसरा, कंपनी आपकी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या फिर एलएलपी होनी चाहिए। प्रोप्राइटरशिप स्टार्टअप
रिकॉग्निशन में नहीं आता है। और एनुअल टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो एज पर गवर्नमेंट कहती है। ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। ओरिजिनल एंटिटी मतलब है, ऐसा नहीं है कि 2 फर्म्स थी, उसको आपने कुछ रीस्ट्रक्चर किया और एक कंपनी बना ली और आप स्टार्टअप में उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक स्टार्टअप जब रिकॉग्निशन जब रजिस्टर करवाता है अंडर डीपीआईआईटी, तो ये देखा जाता है क्या जो बिजनेस मॉडल है स्टार्टअप का, वो इनोवेटिव है और वो स्केलेबल है, क्या आप उसको बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हो। और इसी वजह से टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है टू टेक स्टार्टअप्स टू न्यू हाइट्स। और एक बार आपने स्टार्टअप फॉर्म कर लिया या फिर अगर नहीं भी किया, तो ये जो स्टेजेस होती हैं स्टार्टअप में मोस्टली ये होती हैं कि पहली स्टेज होती है आइडिएशन की, कि सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार ये एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे और इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके इसका कुछ बिजनेस बनाया जा सकता है। तो आपके पास सिर्फ एक आइडिया आया, दैट इज द फर्स्ट स्टेज इन इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्टअप। और जब आइडिया आता है तो आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं या फिर अपने फैमिली में बात करते हैं, अपने नियर बाय कोलीग से बात करते हैं कि ये मेरा आइडिया है। और फिर धीरे धीरे आप उसकी वैलिडेशन भी पकड़ते हैं, तो दैट बिकम स्टेज 2, जहाँ पे आप रिव्यूज लेते हैं अपने आइडियाज के और उसको प्रोटोटाइप में बदलते हैं। कि उसकी कुछ आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो मोस्टली स्टेज 2 और 3 में होते हैं। तो आइडिया होता है उनके पास, वैलिडेशन होती है कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं कि ये मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो वो वैलिडेशन मिल जाती है जब आप कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उसके बाद अर्ली ट्रैक्शन स्टेज 3 आती है, जिसमें कि आपके रेवेन्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मतलब आप सेल करना शुरू करते हैं प्रोडक्ट को और आपको दिखता है कि यहाँ पे दिस कैन बी डेवलप्ड इनटू अ बिजनेस मॉडल। और नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज आती है ग्रोथ एग्जिट, जो हमने बहुत सारे नाम सुने हैं, जोमैटो, ओला, ओयो एंड ऑल दोस। तो वो सब ग्रोथ स्टेजेस की तरफ है। तो दैट बिकम्स द स्टेज 4 ऑफ द स्टार्टअप लाइफ साइकिल। I hope I'm clear to everyone. So if anybody wants to write in chat, are they understanding everything? So मेरे को भी feel होगा कि everybody's getting things. Okay, so next is the startup funding stages. तो बहुत सारे लोगों ने might भी शायद ये सुना हो कि सीड स्टेज A, B, C, D कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेजेस होती है, जिसमें आपका आइडिएशन होता है, फिर वैलिडेशन होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप उसको टर्मिनोलॉजी समझें उसकी, तो प्री सीड फंडिंग बोला जाता है, जो पहली स्टेज होती है। इस स्टेज में स्टार्टअप अभी उसके पास सिर्फ आइडिया होता है, मार्केट टेस्टिंग नहीं होती है प्रोडक्ट की। और जो लोग नॉर्मली प्री सीड फंडिंग में पैसा लगाते हैं स्टार्टअप पे, वो मोस्टली आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स होते हैं, या फिर आपका खुद का पैसा लगा होता है। कोई एक्सटर्नल फंडिंग प्री सीड पे मोस्टली वीसीज या फिर जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट प्री सीड फंडिंग में बहुत कम करते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की बेट होती है प्री सीड फंडिंग में इन्वेस्ट करना। तो और इसमें कुछ वैल्यूएशन की टर्म्स होती हैं, कुछ अप्रोक्सीमेटली फंड रेज कितना उठाते हैं स्टार्टअप्स, तो मतलब मैं उसमें ज्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा। और प्री सीड फंडिंग के बाद एक स्टेज आती है सीड फंडिंग। तो अभी ये टर्म्स कहाँ से आई, बेसिकली जब एक आप पौधा उगाते हो, तो दैट इज कॉल्ड सीड। उसको आप फिर पानी देते हो, नर्चर करते हो। तो सीड फंडिंग में बेसिकली क्या होता है, आप उसको अपने बिजनेस आइडिया को एक तरीके से नर्चर कर रहे हो। तो आप अपने जो प्रोडक्ट होता है उसको आप मार्केट में टेस्ट करते हो, उसको देखते हो कि भाई ये मार्केट एक्सेप्ट कर रही है, इसको वैलिडेट कर रही है। तो वो एक सीड फंडिंग आती है। तो यहाँ पे कुछ लोग पैसा डालते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, एंजल इन्वेस्टर्स हो, या फिर कुछ वीसीज हो। तो वो सीड फंडिंग में पैसा डालते हैं। अगेन इसके बाद फिर सीरीज ए आती है। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर आपने ये 2 स्टेजेस पार कर ली, प्री सीड और सीड स्टेज, तो ये देखा जाता है कि जो ये 2 स्टेजेस पार कर लेते हैं, वो स्टार्टअप्स फेल होने के चांसेस उनके काफी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका आपकी टीम प्लेस पे है, आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट आप ऑलरेडी कर चुके हो,
और एक आपका वर्किंग बिजनेस मॉडल डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फंड्स मिलने इतने मुश्किल नहीं होते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल वैलिडेट हो चुका है। इसी तरह सीरीज ए के बाद बी, सी और आईपीओ की स्टेजेस आती हैं। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है तो उसमें और पैसा चाहिए होता है, तो देन यू आपको फिर अगेन फंड रेज करने पड़ते हैं, तो दैट बिकम सीरीज बी, सी। और आईपीओ आई होप आप सबको मालूम होगा, जैसे कि जोमेटो, पॉलिसी बाजार, नायका, इन सब के आईपीओ आए हैं और कुछ आने भी वाले हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्टअप या तो आईपीओ स्टेज तक जाता है, या फिर कोई ना कोई कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, या फिर मतलब अपने बिजनेस में ही उसको इन्वॉल्व कर लेती है एक स्टार्टअप को। तो स्टार्टअप के एग्जिट इस तरीके से होते हैं कि आपने एक स्टार्टअप डेवलप किया, या तो आप उसको आईपीओ स्टेज तक ले गए और पब्लिक लिस्टेड कंपनी बना दिया, या फिर कोई ना कोई इन्वेस्टर आता है, कोई ना कोई कंपनी आती है जो आपके स्टार्टअप को ओवरटेक कर लेती है। तो जैसे अगर आपने सुना होगा 1mg को टेक ओवर किया था टाटा ग्रुप ने, तो दैट वाज काइंड ऑफ अ मर्जर एंड एक्विजिशन। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपने सुने भी होंगे। तो ये सभी जो कंपनीज हैं जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये सभी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे, जो कि बहुत देर से मार्केट लीडर्स रह चुके थे अपने सेक्टर के। आकाश इंस्टीट्यूट आप सबने सुना होगा, इंडिया बुल्स, थायरो केयर एक बहुत बड़ा नाम था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इन सब ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को एक्चुअल में स्टार्टअप्स ने एक्वायर कर लिया। तो नॉर्मली मतलब आपने होगा कि ये तो भाई बहुत कंफ्यूजिंग है कि स्टार्टअप बाय करते हैं, तो स्टार्टअप्स ने कंपनी को कर लिया। जी हाँ, तो कई बार ये भी होता है कि स्टार्टअप एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को एक्वायर कर लेते हैं और वो इतने बड़े बन जाते हैं। तो भारत पे, मामा अर्थ, तो इन सब ने कुछ ना कुछ एक्वायरिंग की हुई है। तो जो बायजूस ने एक्वायर किया था आकाश को, तो दैट वाज ऑलमोस्ट $1 बिलियन। तो $1 बिलियन इज ऑलमोस्ट 8,000 करोड़। बायजू ने आकाश को ही टेक ओवर कर लिया था। तो मतलब बायजू तो इतना बड़ा नाम बन चुका है, इट इज कॉल्ड बेसिकली नॉट अ यूनिकॉर्न बट अ डेकाकॉर्न। तो इसलिए बहुत जरूरी है स्टार्टअप्स, नो इंडिया के लिए स्टार्टअप्स इंडिया में बने, ताकि जो ट्रेडिशनल सेटअप्स हैं वो उसमें इतनी पावर नहीं होती इनोवेट करने की, जो कि स्टार्टअप्स में होती है। So that is also one big point. Startups should come in a big way, and they are already coming in a big way. Next is journey to 100 unicorns, India's journey। और यूनिकॉर्न बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, $1 बिलियन की जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है, तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ऑलमोस्ट 8,000 करोड़। वैल्यूएशन इज डिफरेंट देन सेल्स, प्लीज मेक श्योर। जो सेल्स फिगर्स होती हैं और जो वैल्यूएशन होती है, उसमें काफी अंतर होता है। तो जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर देती है, तो तब उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कि 2015 से लेकर 2020 तक टोटल हर साल जो यूनिकॉर्न्स बनते थे, इट वाज टोटल अप्रोक्सीमेटली 90 और 100 यूनिकॉर्न्स बने थे 2015 से 2020 तक। बट सडनली 2021 में 86 यूनिकॉर्न्स एक साल में बन गए थे। 2020 में 42 थे और 2021 में 86 पे जंप कर गए थे यूनिकॉर्न्स जो स्टार्टअप थे। तो एक ये समझ में आया कि बहुत जल्दी टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है स्टार्टअप्स में। अगेन उसके पीछे बहुत हार्डवर्क और वो सब लगता है, जिसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। और करंटली वी आर सिटिंग एट ऑलमोस्ट 105 नंबर, जो 105 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी इंडिया में बन चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बज क्रिएट हो गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम का इन यंगस्टर्स। और राइट, तो अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि हम कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे जो जरूरी बात होती है वो होती है कि एक स्टार्टअप में एक फाउंडर की कैपेबिलिटी, उसकी जो रेजिलियंस है, उसकी जो क्षमता है, उसको नापा जाता है कि एक स्टार्टअप फाउंडर कितना अच्छा है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, और वो क्या कुछ कर सकता है। तो ये मेरी एक फेवरेट पिक्चर है, बहुत ही इजी पिक्चर है, बट जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब समझ में आता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको कोई भी काम ना बहुत मुश्किल लगता है,
कि अरे यार ये तो बहुत मतलब मुश्किल काम है, और अगर आप उसे 1 हफ्ता कंटिन्यूअसली कर लें, तो वो आपको काम छोटा लगने लग जाता है और ईज़ी लगने लग जाता है। और सडनली अगर आप उसको 1 मंथ तक कंटिन्यूअसली करें, तो यू स्टार्ट लाफिंग ऑन दैट कि यार मैं मतलब किसको सोच रहा था कि ये काम मुश्किल है, बट ये तो इतना ईज़ी हो गया। तो एक स्टार्टअप फाउंडर में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग करने से आप स्टार्टअप फाउंडर नहीं बन सकते। You have to start taking risk, and at your young age, you must learn to fail fast. तो एक बहुत अच्छा कोट है, फेल अर्ली फेल फास्ट के नाम से। तो आप जल्दी फेल होइए और छोटे छोटे मिस्टेक्स, नई नई गलतियां करते रहिए। पुरानी गलतियां मत करिए, नई गलतियां करते रहिए, लेकिन छोटी छोटी। और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जरूर रखिए अपने आप में। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट इज द बिगेस्ट स्टॉप। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना बहुत डरते हैं शुरू करने से कि हम फेल ना हो जाएं, या अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या बोलेंगे। तो ये स्टार्टअप फाउंडर कभी भी ऐसा नहीं सोचता, तो वो बहुत रिस्क एवर्स होता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एक स्टार्टअप फाउंडर की। और वो ये नहीं सोचता कि फेल हो गए तो क्या होगा, तो फेल हो गए तो क्या, एक नेक्स्ट नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट कर लेना, सो व्हाट। सो यू मस्ट स्टार्ट, stop overthinking, and start implementing things. और ये बहुत फेमस मैं सबको बोलता हूँ कि 3 J बहुत जरूरी हैं होने में एक स्टार्टअप फाउंडर में। और वो होते हैं जुनून, जिज्ञासा और जिद्दीपन। सो जुनून इज पैशन, कि आप में अगर आप कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके, आप कितने पैशनेट हैं उसको लेके। तो क्या आप में वो इतनी अर्ज है कि उस स्टार्टअप को इतने स्केल तक लेके जाना, आर यू पैशनेट अबाउट योर वर्क। सेकेंड इज जिज्ञासा। जिज्ञासा इज क्यूरियोसिटी। स्टार्टअप फाउंडर्स ना कभी भी रुकते नहीं है। सो इफ दे हैव अचीव्ड वन थिंग, दे स्टार्ट फाइंडिंग द अदर वन, कि भाई अब कहाँ पहुंचना है, अब कहाँ पहुंचना है। और एक लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 24 घंटे कुछ ना कुछ वो सीखने की जो आप में वो कहते हैं ना, जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो एक स्टार्टअप फाउंडर में जिज्ञासा बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी। एंड थर्ड आई कॉल जिद्दीपन। प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। जिद्दीपन का मेरा मतलब ये है कि जब आप एक कोई काम शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी आपको मिलते हैं। तो इट शुड नॉट इम्पैक्ट यू। नेगेटिव रिव्यूज तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो आप में एक नेवर टू स्टॉप का यू कैन नॉट क्विट इन बिटवीन। तो आप में इतना जिद्दीपन होना चाहिए कि नहीं, मेरे को तो इसको करना है, जैसे मर्जी मैं इसको लेके जाऊंगा। बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी ऑन द वे, बट एक आप में वो पैशन होना चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और एक रेजिलियंस होनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को तो करना है, जो मर्जी हो जाए आई विल डू इट। तो ये चीजें 3 J's बहुत जरूरी हैं एक स्टार्टअप फाउंडर में। और एंटरप्रेन्योरशिप को मैं एक तरीके से अंतर प्रेरणा बोलता हूँ। अंतर प्रेरणा इसलिए इट कम्स फ्रॉम विद इन। it can be teach someone, entrepreneurship can be taught, but एक इनबिल्ट बॉर्न आप में होती है यार, वो क्यूरियोसिटी की, आई हैव टू बिल्ड अ बिजनेस। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर टू क्रिएटर माइंडसेट। ये बहुत 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 जरूरी है। आप सब सोशल मीडिया पे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस। लेकिन देखिए वो ना जो चीजें बनी है दैट इज फॉर कंज्यूमर सेंट्रिक। आप उसको कंज्यूम करके कोई स्टार्टअप नहीं बिल्ड कर सकते। तो आपको माइंड अपना क्रिएटर का करना पड़ेगा, ना कि कंज्यूमर का। तो अगर आप उन चीजों को यूज कर रहे हैं तो एक आप कंज्यूमर है। क्रिएटर होता है जो वो ऐसी चीजें बनाए जिससे कि यूजर्स हुक्ड हो। तो एक ये माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू स्टॉप यूजिंग एक्सटेंसिवली दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग। मतलब ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। नेक्स्ट इज, अगर आप कंटेंट देखते भी हैं तो एजुकेशनल कंटेंट भी होता है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, और एंटरटेनमेंट कंटेंट भी होता है। तो आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो। क्या आप उससे कुछ सीख रहे हो या फिर इट इज प्योर एंटरटेनमेंट। एंड देयर इज नो लिमिट टू एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। बट अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो, तो मेक श्योर यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग एजुकेशन कंटेंट एंड नॉट एंटरटेनमेंट कंटेंट।
और नेक्स्ट मैं बोलता हूँ एमबीए। एमबीए इज नॉट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट इज माल बेचना आता है क्या। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, आपका प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया, बट क्या आप में वो सेलिंग स्किल्स हैं, ये सीखने बहुत 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 जरूरी है। यू मस्ट लर्न हाउ टू सेल। अगर आपको माल बेचना नहीं आता तो एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस का सोल मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। तो अगर आपके पास सेलिंग और मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, तो या तो आप उसको सीखिए, या फिर अपने साथ एक को फाउंडर इन्वॉल्व करिए जिसको कि ये सब चीजें आती हैं। तो एक ये भी देखा जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि हमेशा बेटर होता है कि अगर आप 2 या 3 लोग स्टार्ट करो, क्योंकि सी इट्स अ लोनली जर्नी, इट्स अ वेरी वेरी टफ जर्नी, इट्स नॉट एन इजी जर्नी। तो जब 2 लोग और 3 लोग अगर आप साथ होते हो, तो यू कैन शेयर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इट इज एन एडेड एडवांटेज। Next is embracing failure. Recently I had the opportunity to go to Israel. तो इसराइल में एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने देखी, वहां पे जो टीचर्स भी थे और जो स्टूडेंट्स आपस में भी थे, तो वो फेलियर को ना एम्ब्रेस करते हैं। मतलब दे सी फेलियर एज अ गुड थिंग। इवन अगर आपको शायद मालूम हो, सिलिकॉन वैली यूएस में, तो ये माना जाता है कि अगर आपने एक बार स्टार्टअप शुरू किया और आप फेल हो गए, तो आपको देयर इज 50% चांसेस कि अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फेल हो गए और आपने दोबारा शुरू किया, तो देयर आर ऑलमोस्ट 100% चांसेस कि आपको फंडिंग मिल जाएगी। तो सिलिकॉन वैली में ये पर्सपेक्टिव चलता है। तो वो फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी गलतियां कुछ कर चुके हो, तो आप उसका एक्सपीरियंस आपको आगे गलतियां करने नहीं देता। सो यू मस्ट लर्न हाउ टू एम्ब्रेस फेलियर। So next is ROTI. We have all heard ROI, return on investment, तो हमने बहुत सुना होगा, बट ये ROI क्या है? So ROI is return on time invested. आप देखिए कि 24 घंटे में आप कितने घंटे किस काम पे लगा रहे हैं, और क्या उसकी रिटर्न आपको उतनी मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी। कई बार हम 2, ढाई, 3 घंटे फोन पे लगे रहते हैं जस्ट टू फाउंड अ 50 रुपीज वाउचर, और टू गेट द डिस्काउंट कूपन ऑफ 50, 100 रुपीज बाय surfing on so many websites. So is it really worth your time? Time is always and will going to be more important than money. तो प्लीज ये देखिए कि आप अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब चीजों को अगर मैं समरी में बताऊं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम इससे बढ़िया कभी नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक आइडिया आया और आपको पैसे मिल जाएंगे। अभी हार्ड है, मतलब इसका ये नहीं है कि आइडिया आया हर कोई आपको पैसे दे देगा, बट अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ये सब चीजें जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, इसमें कहीं ना कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं, या फिर ये कुछ आप में स्किल्स हैं, तो फंडिंग इज नॉट डिफिकल्ट। कई स्टार्टअप तो ऐसे होते हैं जिनके पास एंजल इन्वेस्टर्स जाते हैं कि प्लीज आप हमसे पैसे ले लीजिए। कई बार इतने अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं। सो ऐसा टाइम कभी नहीं आया कि इतना इजीली फंड्स अवेलेबल हो। तो मैं सबको बोलूंगा कि काइंडली मूव टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा नहीं है कि जॉब करना बुरा है। इट्स ओके टू डू अ जॉब। अगर आप में ये सब चीजें नहीं है, अगर आप में 3 J's नहीं है, सेलिंग स्किल नहीं है, या फिर आप थोड़ा डरते हो कि रिस्क लेने से, तो इट्स ओके टू डू अ जॉब। देयर इज नो हार्म इन डूइंग अ जॉब। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जॉब करनी है कैसी करनी है। कहीं मतलब आप ऐसी जॉब तो नहीं करना चाह रहे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2009 में जो मूवी की शूटिंग होती थी, तो वो ऐसी होती थी। एक हेलीकॉप्टर कंपनी से सर्विसेज ली जाती थी। एक पायलट होता था जो हेलीकॉप्टर चलाता था, एक कैमरामैन होता था। तो शूटिंग ऐसी होती थी। तो 2019 में आप देखेंगे कि वो सब जॉब्स चली गई। हेलीकॉप्टर कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, वो खतरे में आ गई। कैमरामैन जिसके पास स्किल्स थे, वो खतरे में आ गए। और इतना कॉस्ट इफेक्टिव ये सब बन गया कि
पूरी इंडस्ट्री इस तरह डिसरप्ट हो जाती है। तो आप देखिए 10 सालों में कितने ड्रोन्स आ चुके हैं या फिर ऑलरेडी R&D स्टेजेस में हैं, तो कितनी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाएंगी, वी हैव नो आइडिया। तो यू मस्ट नो कि अगर आपको जॉब भी करनी है तो वो किस सेक्टर में करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक जॉब अभी आगे की सोच रहे हैं करने की और मे बी वो जॉब ही ना रहे आफ्टर 5-7 ईयर्स बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन और एनीथिंग एल्स। तो ये बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगा कि वी हैव नो अदर ऑप्शन एल्स देन दिस, कि या तो हम इनोवेट करें या फिर हम इनोवेशन में इन्वेस्ट करें अगर हम इनोवेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यही दो ऑप्शन बचते हैं लास्ट में। तो थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। सो माय प्रेजेंटेशन एंड्स हियर। थैंक यू सो मच। Yes, sir. Thank you for the interesting session. Actually, this is the current scenario and the current need of for the early bird startup. For Very the true. early bird startup. So I think our student learned something new from your session. So thank you so much for your for sparing your time, sir. So Thank you. could you Thank you. please wait a minute till our IT company will be showing you some more. Wait a minute, sir. Sure. So, sir, this is from our university. So this is a certificate of appreciation for the session. So thank you so much for sparing your time from the busy schedule, sir. Thank you. Thank you so much, Aish. I hope I've provided value to students, and Yes, looking sir. forward for next opportunity. Thank you so much, and all the best to everyone. Exactly, sir. Thank you so much. Thank you.